WhatsApp group that you need to rename your Zoom profile. Some of the students have already renamed their Zoom profile. We have posted that message as it will be easier for us to make record of your attendance. So please make changes in your Zoom profile. You can make changes now also, or you can make changes after the lecture also. How we expect your profile should be, example I have already shared in the WhatsApp group, right? Most of the students who have joined in, they have already made the changes in their profile. Very good. Now, before we start with our lecture, just an important announcement is that tomorrow, being Saturday, we are planning 2 guest sessions. The first guest session will start at 11 o'clock in the morning, and the second guest session will start at 6 in the evening. So morning 11 o'clock, we will have one guest session on the digital marketing or social media marketing. And the next session at 6 p.m., we will be having an expert who will be speaking on the prospects in import and export sector. So both the sessions are important, and we expect that every one of you can float this message on your parallel group, informal WhatsApp group also, that tomorrow 2 guest sessions will be there, and we are expecting that everyone should join these guest sessions, right? So first session at 11 a.m. will be conducted by our founder secretary, Dr. Shilpa Kulkarni madam. She will be speaking on social media marketing, and second session will be on import export management. Plus we will be having 2 lectures in the morning. First lecture will be at 7:30, second lecture will be at 8:30. Then there will be a break, 9:30 to 11 o'clock. Sharp at 11, we will be starting with the session. So we are expecting that sharp at 11, you all should join the session, right? तो पहला लेक्चर आपका, जो पहले 2 लेक्चर्स रेगुलर होते हैं वैसे ही रहेंगे. 7:30 बजे पहला लेक्चर होगा, फिर 8:30 बजे दूसरा लेक्चर होगा, और उसके बाद फिर हमारे जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर शिल्पा कुलकर्णी मैडम, उनका एक ऑनलाइन सेशन होगा 11 बजे डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पे, और उसके बाद फिर शाम को 6 बजे एक गेस्ट सेशन रहेगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट का. रोज शाम को जो 3 लेक्चर्स रहते हैं वो लेक्चर्स नहीं रहेंगे. शाम को सिर्फ एक 6 बजे का गेस्ट सेशन रहेगा. तो हम लोग चाहते हैं कि आप सब ये सारे लेक्चर्स अटेंड करें, ठीक है? और अभी मेरा लेक्चर खत्म होने के बाद आप अपना जूम प्रोफाइल भी चेंज कर लीजिए. कैसे करना है, ग्रुप के ऊपर मैंने मैसेज डाल दिया है. अगर किसी को कोई क्वेरी रहेगी तो आप अपने फ्रेंड्स को भी पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्टेबल. ठीक है? तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ आवर सेशन, and before we start our session, one more important thing which I observed in the session of verbal communication. For the first 10 minutes, only say 9 to 10 students were there for first 10 minutes, and later on some of the students joined in. Madam, I think she has given you some assignment, and very few students had completed those assignments also. So please take a serious note of it, that whenever some faculty is giving you an assignment, it is expected that you will be following the deadline of completing and submitting that assignment.
Now online submission, if it is oral, that you need to say prepare a project or an assignment and you have to present it before the class. So you have to do it, because when we will be completing our or finalizing our internal evaluation or your internal marks, all these things will be taken into consideration. Please take a note of that, कि जब भी कोई असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है, प्लीज उसको सीरियसली लीजिए, अच्छे से कीजिए. जो जितना अच्छा करेगा उसको उतने अच्छे इंटरनल मार्क्स मिलेंगे, और ये सब आपके लिए हो रहा है. अगर आप अच्छे से वर्बल कम्युनिकेशन का करेंगे, तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि अगर आपने अच्छे से किया होगा तो आपका परफॉर्मेंस वहां अच्छा होगा. तब आपको रियलाइज होगा कि कितना फायदा होता है असाइनमेंट्स कंप्लीट करने का, या फिर सिंसियरली लेक्चर्स अटेंड करने का, राइट? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट एंड स्प्रेड दिस मैसेज इन योर इनफॉर्मल ग्रुप ऑल्सो. और कल एक और हमने मैसेज अभी पोस्ट किया है, थोड़ी देर पहले ही मैंने एक मैसेज डाला है कि जब एडमिशन हुआ तब हम लोगों ने पूछा था कि आप जॉब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. कुछ बच्चों ने बोला कि हम जॉब कर रहे हैं. उनसे हमने ऑफर लेटर्स मांगे या फिर अपॉइंटमेंट लेटर्स मांगे या फिर मेल मांगे, और उनका हम लोगों ने एक रिकॉर्ड तैयार करके रखा. अब ऐसे अगर कुछ बच्चे बचे हैं कि जो जॉब कर रहे हैं पर उन्होंने ऑफर लेटर या एप्लीकेशन नहीं दिया है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना ऑफर लेटर और एप्लीकेशन एक कागज पे लिख के उसका भी फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे आप डाल सकते हैं, जिससे कि हमारे को पता चलेगा कि आप वर्किंग है और आप रेगुलर लेक्चर नहीं कर पाएंगे. दोज हु आर नॉट वर्किंग, दे आर expected to attend all the online lectures, and those who are working, they are expected that whenever they are free, they should be attending the online lectures, because it will help you and it will help us also when we will be finalizing your internal marks. So this was it, and now we will be starting with our session. And yesterday we were talking about the contract, performance of contract, that we have already covered. In case of any query, you can ask me. If you have not understood anything so far, whatever, right from first session to the last session, if you have not understood anything, if you have any query, then you can just unmute yourself and raise your query. Yes, no query. Okay, very good, great. Now we will be starting with the last part of Contract Act, and that part is related to discharge of contract. Contract खत्म कैसे होता है, contract discharge कैसे होता है, that we will be discussing now. I hope that am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you. Yes, now we will be starting with discharge of contract. How a contract is over, how a contract is discharged, or contract khatam kaise hota hai. Now, first point we will be taking up for discussion is by performance of the contract. That we had discussed yesterday also, when we were talking about what is actual performance and what is attempted performance or tender. So when actual performance is done in any contract, it is said that contract has been performed. So actual performance, yesterday also we had taken an example. It is very simple. When both the parties to the contract have performed their respective responsibilities mentioned in the contract, at that moment we can say that the contract is discharged by way of its performance. ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है. कैसे खत्म हो गया है?
कि दोनों पार्टियों ने अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो भी निश्चित थी वो उन्होंने पूरी कर दी है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट अब ओवर हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट अब डिस्चार्ज हो गया है. That is the first mode of discharge of contract. Second mode of discharge of contract is by way of agreement. Now, agreement के 7 types हैं कि कैसे discharge हो सकता है. तो first we will be taking up the first agreement type of discharge of contract. कैसा होता है? By novation. The meaning of novation is new contract. By rescission, rescission is cancellation. By alteration, alteration means making changes in the contract. By remission, remission means when lesser acceptance is accepted, that is called as remission. Waiver, it is waiving off or completely waiving off the responsibility of the in the contract. Merger, merger means when two contracts are merged and one contract is created, that contract is called as by merger. And by owing to the occurrence of an event. So these are some of the points where we can say that this is how the contracts can be discharged. So before we start with all these 7 points one by one, if anyone has read, because yesterday I had given you a task that read about how a contract is discharged and what are the various remedies available for breach of contract to the party which has suffered losses. So two things you had to read. First is discharge of contract, and the second one is remedies available to a party which has suffered loss in the contract. Yes, anyone who has read about novation, rescission, remission, alteration, waiver, merger, or by owing to the occurrence of an event. Anyone, you can unmute yourself and we will start the discussion. थोड़ा गलत हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. It can be Hindi, English, Marathi, anything, but it will be better if more interaction is coming from the student side. Yes, anyone? Novation, rescission, alteration, remission, waiver, merger, and owing to the occurrence of an event. Yes, unmute yourself and we can start with the discussion. Yes. Yes. No one? Hello, sir. Yes. Hello, sir. Pranav Joshi here. Pranav. Yes, Pranav. Yes, sir. I have learned in my last year of mercantile law. Okay, very good. But, sir, I don't remember all those points. And Any point which you remember, any point among these 7. recession, मतलब sir, जो recession आता है, like corona and any virus or any disease by which everything is closed. That type of. That is called as a recession, है ना? Okay. Anyone else? Is the explanation given by Pranav correct? Yes, anyone? Is the explanation given by Pranav about one of the way to discharge contract, is this explanation correct? यहाँ पर हम लोग जितना बात करेंगे, जितना इंटरेक्ट करेंगे, उतना आपको इंटरेस्ट आएगा. अदरवाइज इट इज लॉ. लॉ फिर बोरिंग भी हो सकता है, लॉ फिर मुश्किल भी हो सकता है, लॉ फिर काफी आपको एग्जाम में परेशान भी कर सकता है. ठीक है?
तो यहाँ पर कैसा है, मार्क्स काफी अच्छे भी आते हैं और मार्क्स काफी बुरे भी आते हैं। तो वो हमारे ऊपर है, जितना कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जितना इन्वॉल्व होंगे उतना मजा आएगा, जितना आप लॉगिन करके भूल जाएंगे उतना फिर आगे प्रॉब्लम होगा। ओके, तो आई विल एक्सप्लेन। The explanation given by Pranav is not correct. It is not recession, it is recession. So recession, what Pranav had said is absolutely correct, which we all had faced very recently when Corona started showing its effect from the month of March 2020. Almost 1 year is over now. So that was recession. Now here it is recession. Now recession, the meaning of recession is cancellation. इस वर्ड का, रिसीजन का मतलब है कैंसलेशन। अब लॉ में अगर किसी टर्म का मतलब अगर हम लोग गलत लिख देंगे तो फिर पूरे मार्क्स जा सकते हैं। जैसे कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट डिस्कस किया, दैट कंसेप्ट वाज अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट? नाउ द सेकंड वर्ड फॉर attempted performance which we came to know was tender. अब अगर एग्जाम में आपको पूछा गया कि explain the ways of tender, मतलब क्या पूछ रहे हैं वो, explain the ways of attempted performance, how tender can be made or how attempted performance can be made. अब attended performance नहीं लिखा वहां पर, और वहां पर सिर्फ लिखा how or which are the ways by which tender can be made. अगर ऐसा लिखा और हमारे को ये नहीं अगर वहां पर समझ में आया कि अच्छा टेंडर मतलब निविदा, उसके बारे में अगर मैंने एग्जाम में लिख दिया तो मेरे पूरे मार्क्स चले जाएंगे। यहाँ पर टेंडर का क्या मतलब है लॉ में? टेंडर का मतलब है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, राइट? सेम इज द केस विथ रिसीशन ऑल्सो। वहां पर रिसेशन है, यहाँ पर उसे वो रिसीशन बोलते हैं। वहां पर रिसेशन का मतलब है कि जब बिजनेस में, जब जॉब्स में, जब शेयर मार्केट में मंदी चलती है तो दैट इज रिसेशन। यहाँ पर रिसीशन का क्या मतलब है? यहाँ पर है कैंसलेशन, राइट? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now, by novation, I had already told you, novation means when a new contract is created, it is called as novation. Now, for example, there is a contract between Mr. A and Mr. B. Mr. A wants to sell his car to Mr. B for 50,000 rupees. The term is that immediately on receiving the delivery of the car, Mr. B will pay 50,000 cash to Mr. A. Now, before the date of the contract, when both the parties were supposed to complete their promise, supposed to complete their responsibilities, Mr. B approaches Mr. A that he is short of funds and it is not possible for him to pay 50,000 next day when they were supposed to meet, and when they will be exchanging car and money, or they will be performing their part in the contract. At that moment, if Mr. A asks Mr. B that okay, if I am ready to sell you the car by tomorrow itself, but if you are not paying me money by tomorrow, then after 15 days you have to pay me 50,000, not 50,000 but 55,000. So what has happened here? The earlier contract is discharged, object is same, but the
terms and conditions are now new. Now the contract, earlier contract is discharged, a new contract has come into existence. So that contract is called as by novation. Now by rescission, rescission means cancellation, that older contract is cancelled, or before the contract has come into existence, both the parties have agreed that they will cancel their contract. अब इसी एग्जाम्पल को हम लोग कंटिन्यू करेंगे रिसीशन के लिए. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया 50,000 रुपए में वो कार बेचना चाहते हैं. अब कार जिस दिन बेचनी है उनको, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना है, उससे एक दिन पहले मिस्टर बी मिस्टर ए को फोन करके बताते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है 50,000, तो अगर वो बाद में देंगे, 15 दिन के बाद में या महीने के बाद में देंगे तो चलेगा. अब इस पे मिस्टर ए बोलते हैं कि नहीं चलेगा, अगर आप कल पैसे दे रहे हैं तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कल, अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो हम लोग हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे. So this will be called as discharge of contract by way of rescission. So rescission is cancellation of contract. Cancellation should always be done before the execution of the contract or before the date of execution of the contract. Contract बना था 10 दिन पहले, कब वो एग्जीक्यूट होने वाला था? वो एग्जीक्यूट होने वाला था 10 दिन के बाद. तो 10 दिन से पहले अगर 9वें दिन भी, अगर 5वें दिन भी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वो बराबर से 10 दिन के बाद एग्जीक्यूट कर सकते हैं या 10 दिन से पहले उसको कैंसिल कर सकते हैं. अगर वो कैंसिल करते हैं तो दिस विल बी कॉल्ड एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वे ऑफ rescission. Now next one is by way of alteration. Alteration means changes. कि टर्म्स एंड कंडीशन में अगर कुछ चेंज हो जाते हैं तो वो होता है अल्टरेशन. अब ए को 50,000 रुपए में कार बेचनी है बी को. पहले था कि कैश बी को देना पड़ेगा. अब बी फोन करके बोलता है कि मेरे पास इतना कैश नहीं है, मैं ऑनलाइन कल ही आपको पे कर दूंगा. तो दिस विल बी कॉल्ड एज by way of alteration. Changes have been made. Now next one is called as remission. Now the meaning of remission is when lesser promise is accepted by one party in the contract. Just remember the meaning of these words and then you will be able to write about it. ठीक है, अगर रिमिशन का मुझे मतलब नहीं पता तो लिखने में प्रॉब्लम होगा, पर अगर मुझे मीनिंग पता है वर्ड्स का तो लिखने में मैं अपने वर्ड्स में भी लिख सकता हूं. एंड प्लीज रिमेंबर दैट यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स. No marks will be deducted. Yes. Neha here. Your screen is not visible actually, so I'm unable to write it down, the notes. So are you sharing the screen with us? अच्छा, okay. Sorry. स्पेलिंग नहीं एक्चुअली समझ में आया थर्ड का. हाँ. Wait. You should have stopped me. Sorry, I forgot to share my screen. Sorry. We thought वो बोली आप बोल रहे थे. नहीं. We understood that. Just a moment. I'll be sharing my screen. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay, sorry. It was my mistake. I thought that I have already shared the screen. It was my mistake. Sorry. Yes. So
novation means when a new contract is created. Rescission means cancellation. Alteration means changes. Remission means lesser promise, lesser acceptance of lesser promise. Waiver means पूरा माफ कर देना, जिसे हम बोलते हैं ना वेव कर देना. जैसे अभी ये फार्मर्स का गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वेव ऑफ कर दिए, तो दैट इज कंप्लीट वेव ऑफ. रेमिशन मींस थोड़ा कम करना, और वेव ऑफ कर मतलब पूरा की पूरा कम कर देना, राइट. मर्जर मींस जब दो कॉन्ट्रैक्ट्स आपस में मर्ज हो जाते हैं, दैट इज मर्जर. Yes, so we were discussing, I think we were discussing, yes, remission, by way of remission. Now, remission means then when the party to the contract is ready to accept the lesser promise of the other party in the contract, that is called as remission. For example, Mr. A has given 1 lakh loan to Mr. B. The term and condition was that after a period of 2 months, Mr. B will return the principal amount, that is 1 lakh, with an interest of 10,000 rupees per month, right? This was the term and condition. तो 2 महीने के बाद मिस्टर बी को कितना पैसा देना है? 1,20,000 रुपए देने हैं मिस्टर ए को. अब रेमिशन का क्या मतलब है? When lesser promise is accepted by the party in the contract. अब अगर मिस्टर बी मिस्टर ए को अप्रोच करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, मेरे पास अभी पैसा पूरा नहीं है आपको रिटर्न करने के लिए, मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया था, 10% इंटरेस्ट पे लिया था, अब मैं आपको सिर्फ 90,000 रुपए दे सकता हूं, अगर चाहिए तो आप ले लीजिए, नहीं तो मैं ये भी आपको नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया है, मुझे बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हुआ है. अब मिस्टर ए के पास 2 ऑप्शन. एक, ये लेसर प्रॉमिस है ना, ये कितना देना था? 1 लाख रुपया प्लस 20,000 रुपए इंटरेस्ट का. तो 1,20,000 की जगह मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो 90,000 इनके एक्सेप्ट कर लें और कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए, या फिर मिस्टर बी को वो कोर्ट में लेके जाएं और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, शिकायत दर्ज करें और केस कोर्ट में उनके लिए उसके अगेंस्ट लड़े. अगर मिस्टर ए जो दूसरा वाला ऑप्शन है कोर्ट में केस करने का, वो ना अपनाते हुए अगर 90,000 रुपए एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड बाय वे ऑफ रिमिशन. द कोर्ट विल अज्यूम एज इफ मिस्टर बी has completed the whole part of his responsibilities in the contract. कोर्ट क्या अज्यूम कर रहा है यहां पर कि क्योंकि बिना किसी शिकायत के मिस्टर ए ने ये एक्सेप्ट कर लिया 90,000, इसका ये मतलब है कि बाकी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बी की, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रिमेनिंग 10,000 रुपीज प्लस 2 महीने का 10% से इंटरेस्ट, वो भी उसका इसने किसने एक्सेप्ट कर लिया? मिस्टर ए ने, कि ठीक है 90,000 तो 90,000 उतना ही मिलेगा, वो भी बहुत है, अगर नहीं लिया तो शायद मेरा वो पैसा भी डूब जाएगा. तो ये होता है रेमिशन. अब इसमें एक, अगर सपोज 90,000 ले लिए 2 महीने के बाद, तीसरे महीने में मिस्टर ए को ये पता चलता है कि मिस्टर बी को 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी. अब मिस्टर ए चाहते हैं कि मिस्टर बी जो 30,000 रुपए उनके पास बचे हुए हैं इनके, वो भी रिटर्न करे.
और अगर ऐसे में वो मिस्टर बी को अप्रोच करते हैं और मिस्टर बी वो 30,000 रुपए देने से मना कर देते हैं, तो क्या मिस्टर ए कोर्ट में जा सकते हैं वो पैसा लेने के लिए? कोर्ट में क्या वो बता सकते हैं कि अरे अभी तो इनको लॉटरी लग गई है, पहले तो लॉस था, इसीलिए मैंने 90,000 एक्सेप्ट कर लिए, अब इनको लॉटरी लगी है, 10 लाख रुपए मिले हैं, तो इन्होंने मुझे 30,000 देने चाहिए। अब ये 30,000 मुझे नहीं दे रहे हैं, इसीलिए मैं इनके ऊपर केस फाइल करना चाहता हूँ। क्या कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? यस, कोर्ट एक्सेप्ट करेगा? यस सर, प्रूफ। यस सर, अगर हेलो? उसके पास प्रूफ है तो मे बी। हाँ, अगर उसके पास प्रूफ है तो कोर्ट शायद एक्सेप्ट कर सकता एक्सेप्ट है, कर। राइट? और यस। कोई? और कोई? Anybody who is saying that no, court will not entertain his application? Anyone? I think no, sir. Acha, why The no? court will not accept Why no? because the contract is closed before the time limit. Lesser contract. The agreement is done. Because the contract is already over and lesser promise has been accepted by Mr. A as if Mr. B has completed his complete part in the contract. Complete part in the contract, right? तो यहां पर कितना भी 10 लाख की जगह अगर 1 करोड़ रुपए की भी लॉटरी मिलेगी लगेगी तो भी केस फाइल नहीं हो सकता। यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस हुआ 1900 में सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी 1963 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक केस हुआ इसी के ऊपर, रिमिशन पे, कि 2 पार्टीज हैं, एक मिस्टर कपूर हैं और एक दूसरी पार्टी का नाम है हिदायत खान, मिस्टर हिदायत खान। तो मिस्टर कपूर और मिस्टर हिदायत खान 2 पार्टीज थे। अब मिस्टर कपूर को मिस्टर हिदायत खान से 27 लाख रुपए लेने थे, 27 lakhs। प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ था। अब क्योंकि इनके पास 27 लाख रुपए तब नहीं थे, तो क्या हुआ कि इन्होंने 20 लाख रुपए कहीं से एडजस्ट करके मिस्टर कपूर को दिए। अब मिस्टर कपूर ने भी वो 20 लाख रुपए ले लिए, एक्सेप्ट कर लिए और कॉन्ट्रैक्ट वहां खत्म हो गया। अब बाद में अचानक से मिस्टर हिदायत का बिजनेस अच्छा चलने लग गया, उनके पास बहुत पैसा आ गया। ये मिस्टर कपूर को पता चला। जैसे ही उन्हें पता चला, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया मिस्टर हिदायत के अगेंस्ट कि अब मुझे वो 7 लाख रुपए आपसे चाहिए, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी बहुत अच्छी है, आप मुझे वो दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रिजेक्ट की और उसमें ये कंडीशन रखा रिजेक्शन के लिए कि एज एट द टाइम ऑफ closing the contract, you had accepted the lesser amount from the party as if you have accepted or received the complete dues which were there with the parties. अब यहां पर कोर्ट ने क्या कहा कि 27 लाख आपको लेने थे बराबर है, पर जब मिस्टर हिदायत ने बताया कि मेरी हालत अभी अच्छी नहीं है, मैं आपको 20 लाख ही दे सकता हूं, तब आपने केस फाइल किया रहता तो आपका केस वैलिड था, एक्सेप्टेड था। तब आपने केस फाइल नहीं किया, अपने राइट को, जो हर एक व्यक्ति को जो राइट दिया गया है कि इन केस ऑफ लॉस यू हैव एवरी राइट टू अप्रोच जुडिशरी, टू अप्रोच कोर्ट टू गेट your loss recovered from the party which has made you suffer the loss. तो तब आपने अपना राइट यूज नहीं किया, अधिकार का
यूज नहीं किया, तब आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब इनकी हालत कितनी भी अच्छी हो गई तो भी अब आप 7 लाख रुपीस उनसे नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने बताया था कि ये जो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके अंडर हुआ? ये हुआ द कॉन्ट्रैक्ट वाज डिस्चार्ज्ड बाय वे ऑफ रिमीजन। मतलब लेसर प्रॉमिस आपने एक बार एक्सेप्ट कर लिया, मतलब पूरा आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अगर यहां पर ये बोलते कि 20 लाख रुपए मैंने अभी ले लिए हैं और 7 lakhs पेंडिंग हैं, अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता तो फिर यस, ही वाज हैविंग एवरी राइट टू फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो दैट वाज बाय वे ऑफ रिमिशन। Now next one is waiver. Waiver means complete माफ कर देना या फिर एक मेजर पार्ट माफ कर देना। अब वेवर मतलब कि 2 लाख रुपए लोन दिया गया, जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि एनपीए, एनपीए शायद सबको पता होगा। व्हाट इज एनपीए? एनपीए, यस, No, sir. Non-profit something. एनपीए, अरे सबको पता होना ही चाहिए। वी आर एमबीए, everyone should be knowing what is NPA। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नहीं पता है एनपीए। एनपीए, अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस, सबको पता है, बोलिए। एवरीवन Sir, is it knows what college is level NPA। accreditation? No, it is not। That is NBA, National Board of Accreditation। NPA, P for Pune, Sir. N for Non-profit asset. Nagpur, huh? Non-profit asset. Yes, who is this? Abhishek Kaur. Abhishek, what it is? Non-profit asset. Non-performing assets, NPA, right? लोन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, क्या रहता है वो? अभी आप बराबर है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या रहता है वो? लोन्स एंड एडवांटेजेस। हाँ, मतलब क्या आप एग्जाम्पल दे सकते हैं? बराबर, बट आई नीड एग्जाम्पल फ्रॉम योर साइड। सब जिसको नहीं पढ़ा है, जिसने एनपीए के बारे में, वो भी, उसको भी क्लियर हो जाएगा फिर। यस, एनपीए, अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं एनपीए के ऊपर। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, राइट, जिनको वेव ऑफ कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। उसका बहुत बड़ा न्यूज था। Yes, sir, I can try because I have seen. हाँ, यस, गो अहेड। हमने जो मतलब लोगों ने घर खरीदा या किसी की जिनकी भी ईएमआई चल रही थी और सैलरी नहीं मिल रही थी, तो उस समय उनकी ईएमआईज वो लोग पे नहीं कर पा रहे थे। सो दैट गवर्नमेंट ने बैंक को कुछ मतलब इंस्ट्रक्शन दिए थे, वी कैन से, और कुछ बैंक ने भी डिसाइड किया था, एंड देन दे कम अप विद द अनदर सोल्यूशन कि वो 3 महीने तक एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने कि आप 3 महीने मतलब 3 महीने बाद भर सकते हैं, और कुछ वेवर भी दिया था कि नहीं करेंगे तो चलेगा, और या परसेंटेज भी कम किया था। अच्छा, आप कौन से बैंक का बता रहे हैं? सर बैंक, मुझे पर्टिकुलर बैंक याद नहीं, पर न्यूज में देखा था ये। अच्छा, हाँ, क्योंकि क्या हुआ था कि 3 महीने तक काम नहीं था, सब बंद हो रहा था, इसीलिए ये एक ऑफर दिया गया कि आप 3 महीने अगर नहीं भरेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ पर एक रिलैक्सेशन हुआ था, वेव ऑफ नहीं किया था। वेव ऑफ मतलब आपने पूरा कंप्लीट कि 3 महीने का हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये क्या हुआ कि कैरी फॉरवर्ड हो गया कि ठीक है, आपने अप्रैल मई जून में नहीं भरा तो भी चलेगा, पर वो जो था अप्रैल मई जून का, वो आपको आगे भरना पड़ेगा। मतलब 15 साल का जो आपका पीरियड है, अब वो क्या हो गया, 15 साल 3 महीने हो गया। वेव ऑफ में क्या होता है कि आपको कंप्लीट मतलब वो माफी हो गया कि अप्रैल मई जून
आपका 10-10 हजार का EMI था, अगर ऐसा गवर्नमेंट बोलती कि 30,000 रुपए आपके लोन के ही हम लोग कम कर देंगे, जो हाउसिंग लोन है, तो ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए इसको हम लोग वेवर नहीं बोल सकते। अब NPA में क्या होता है, अब शायद आप लोगों को पता होगा कि काफी सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिन्होंने 1000 करोड़ में लोन लिए, पर कंपनीज लॉस हो गई, कंपनीज बंद हो गई और उनको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया या इंसॉल्वेंट वो हो गए। कोर्ट ने उनको बता दिया उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो वो जो था उनका जितना भी ये था लोन था, वो क्या हो गया, वो NPA में चला गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में चला गया। अब वेवर का मतलब क्या है कि जहां पर जब एक पार्टी को ये लगता है कि दूसरी पार्टी पैसे भरने के कंडीशन में नहीं है, अगर मैं इस पार्टी के ऊपर केस भी करता हूं या करती हूं, तो क्या होगा कि अगर ये कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में अगर ये हो गया क्लियर कि इसके पास, इस पार्टी के पास पैसा ही नहीं है रीपे करने के लिए, तो कोर्ट उस पार्टी को क्या डिक्लेयर करेगा, बैंकरप्ट या फिर इंसॉल्वेंट। और जैसे ही कोर्ट ने किसी पार्टी को बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, तो उसकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी वो ऑटोमेटिकली वहीं पर डिसॉल्व हो जाती। जैसे अगर किसी ने अभी मिस्टर ए ने 10 लाख रुपए का लोन दिया मिस्टर बी को, मिस्टर बी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ बिजनेस में, उन्होंने जो भी ट्राई किया, अब उनके पास रीपे करने के लिए पैसे नहीं। अब वो मिस्टर ए को अप्रोच करते हैं मिस्टर बी कि मेरा बहुत लॉस हुआ है, मेरे पास अभी सिर्फ 5 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख रुपए आपको रिटर्न कर सकता हूं, अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, बाकी के आप छोड़ दो क्योंकि मेरे पास अभी कंडीशन ही नहीं है और मैं भर ही नहीं पाऊंगा। तो मिस्टर ए के पास दो ऑप्शन है, एक कोर्ट में लेके जाओ बी को, या फिर उसका 5 लाख रुपए वेव ऑफ कर दो, माफ कर दो कि ठीक है 5 लाख तो 5 लाख। अब यहां पर क्यों ये सब चीजें होती हैं, रेमिशन एक्सेप्ट क्यों किया जाता है या वेवर क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर कोर्ट में केस चला तो ऐसा कहीं पर भी किसी भी एक्ट में ये फिक्स नहीं है कि अगर 10 लाख रुपीस का लोन है और उसका केस अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सेशंस कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर आप फाइल करते हैं, तो सेशन कोर्ट में अगर आप फाइल कर रहे हैं तो वो 15 दिन में सॉल्व होना चाहिए, अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो 1 महीने में सॉल्व होना चाहिए, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वो 2 महीने में सॉल्व होना चाहिए। ऐसी जो डेडलाइंस हैं ये किसी भी एक्ट में नहीं अवेलेबल। अब ये डेडलाइंस नहीं है, इसीलिए सबको पता है कि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, टीडीएस प्रोसेस है और मेंटली टॉर्चरस प्रोसेस है कि बार बार आपको डेट्स मिलेंगी, पता नहीं आपको 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा या 6 साल लगेगा वो पार्टी से पैसा वसूल कर। इसीलिए कई लोग ये सोचते हैं कि ठीक है कम मिला तो भी चलेगा पर कोर्ट नहीं चाहिए, आधा मिला बाकी का वेव ऑफ कर दूंगा पर कोर्ट नहीं चाहिए। अगर ऐसा रहेगा तो ही ये डिस्चार्ज हो सकता है, नहीं तो ऑप्शन हमेशा अवेलेबल रहता है कि आप उसको कोर्ट में ले जा सकते हैं, उसके खिलाफ केस कर सकते हैं और अपना पूरा कॉम्पेंसेशन उससे ले सकते हैं। और दूसरा डर ये रहता है कि अगर कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि ये इनसॉल्वेंट है तो क्या होगा, फिर आप उससे पैसे कभी भी वसूल नहीं कर सकते। अब एक पता नहीं अभी आप लोगों में से कितने लोग इकोनॉमिक टाइम्स या फिर ये पढ़ते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड, ठीक है, पढ़ना चाहिए। एमबीए स्टूडेंट्स को हमेशा ये 2 पेपर पढ़ने चाहिए, ठीक है। अभी पीछे शायद 2 महीने पहले या उससे ज्यादा समय हो गया होगा, एक न्यूज था बिजनेस स्टैंडर्ड में कि मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी, ये तो सभी को पता है,
ठीक है, अनिल अंबानी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, पर वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए जितने सक्सेसफुल उनके बड़े भाई मतलब मुकेश अंबानी। अब रिसेंटली 2-3 महीने पहले ये क्लियर हो गया कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गए, क्योंकि उनको बहुत सारा लॉस हुआ। कुछ 1000 करोड़ में बैंक से लोन लिया था, वो रिटर्न करने की पोजीशन में नहीं थे, इसीलिए डिक्लेयर हो गए वो कि वो अब उस पोजीशन में नहीं। तब वहां पर एक न्यूज था कि ना सिर्फ इंडियन बैंक से उन्होंने लोन लिया था, बल्कि उन्होंने चाइनीज बैंक से भी लोन लिया था। अब किसी भी बैंक से अगर आप लोन लेते हैं और कंट्री के कोर्ट ने अगर आपको बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया है, तो कोई भी बैंक आपसे पैसा वसूल नहीं कर सकता। तो इस वजह से कई लोग क्या करते हैं कि ठीक है, रिसीजन रेमिजन तो रेमिजन, कम पैसा मिल रहा है पर मिल तो रहा है, आधा पैसा मिल रहा है, आधा माफ कर देंगे, चलो मिलेगा तो सही, क्योंकि कोर्ट में गए और डिक्लेयर हो गया अगर बैंकरप्ट तो वो भी नहीं मिलेगा। सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस व्हाई some of the people, some of the parties, some of the banks are ready to accept lesser amount also. अब बैंक में भी जो छोटे लोन लेते हैं, जैसे 1000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए या 20 लाख, ये छोटे लोन्स में की कैटेगरी में आता है, तो इनके लिए एडजस्टमेंट इतना नहीं होता है। पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोन्स लेते हैं, जैसे 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, जब इनको बिजनेस में लॉस हो जाता है और ये जब रिटर्न करने के लिए बैठते हैं, जब इनका वापस से एक एग्रीमेंट या फिर मीटिंग्स होती हैं बैंक ऑफिशियल्स के साथ, तो वहां पर इनको भी वेवर्स दिए जाते हैं, इनके साथ भी रेमिशन डिस्कस होता है, क्योंकि बैंक को पता है 100 करोड़ है, 100 करोड़ में अभी इसकी उतनी कंडीशन ही नहीं है कि वो 100 करोड़ रीपे करे, तो ठीक है, कितना कर सकते हो, 50 करोड़ या 60 करोड़ या 70 करोड़, उतना करो, बाकी का हम लोग वेव ऑफ कर देंगे, बाकी का, क्योंकि पूरा एनपीए होने तक थोड़ा सा एनपीए होगा तो चलेगा। सो दीज आर सर्टेन कंडीशंस व्हाई द पार्टीज इन द कॉन्ट्रैक्ट दे आर एक्सेप्टिंग remission and waiver for discharge of contract. Now the next one is called as merger. Merger मतलब जब दो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज मर्जर। अब इसकी डेफिनेशन भी ऐसी है कि व्हेन वन inferior contract gets merged into a superior contract, the inferior contract is discharged by way of merger. अब यहां पर एक छोटा सा एग्जाम्पल कि मिस्टर ए रेंट पे रहते थे और मिस्टर बी उनके लैंडलॉर्ड हैं, तो ये रेंट पे रहते थे, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट था, लैंडलॉर्ड और रेंट के लिए एक जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट था। 2 साल रेंट पे रहने के बाद मिस्टर ए उस घर को, उस फ्लैट को खरीद लेते हैं। अब जो इन्फेरियर राइट है, इन्फेरियर राइट कौन सा है कि मिस्टर ए रेंट पे रह रहे हैं, अब वो क्या हो गए हैं इस घर के, जैसे उन्होंने वो घर खरीद लिया, अब वो हो गए इस घर के मालिक। तो अब जो छोटा इन्फेरियर जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब वो सुपीरियर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मर्ज हो जाता है, तो इन्फेरियर कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही डिस्चार्ज हो जाता है। तो जैसे ही वो ओनर बन गए घर के, वैसे ही उनका जो इन्फेरियर राइट था, जो इन्फेरियर कॉन्ट्रैक्ट था, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, एंड दैट डिस्चार्ज विल बी कॉल्ड एज बाय वे ऑफ मर्जर। Yes, now it is okay. Just okay. What we will do is, now it is okay. Already 5 minutes are over, so we will stop here. Remaining discharge and remedies we will be taking up for discussion on our next lecture. So before we wind up the session, once again let me remind you that tomorrow morning session we will be having 2 lectures. First lecture at 7:30, second lecture at 8:30,
and 11 o'clock in the morning, our founder secretary will be conducting one online session on the social media marketing. And in the evening at 6 p.m., again, we will be having one online session on import-export management. And we expect more number of students to turn up for the online sessions, right? तो ज़्यादा से ज़्यादा students होने चाहिए, ऐसा हम लोग चाहते हैं. हम लोग मैसेज भी डालेंगे, तो प्लीज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन कीजिए, right? So we will wind up this session now, and we will continue when we will be having next session, maybe on Monday, right? Chalo, okay. Thank you everyone, and good night. Thank you. Sir. Thank you, sir.